Good morning, everyone. Hello, am I audible? Hello. Hello. Yes, you are audible, sir. Yeah. Okay. Thanks. Any questions on what we discussed yesterday? Okay. I take that as no questions. So हमने ये कंप्लीट कर लिया क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो. ठीक है. Next I'll start with turnover ratios. ठीक है. As I discussed yesterday, return ratios अभी skip किया. We'll do return ratios later. आप पूरे ये तो पे नोट करके रखो आप. रिटर्न रेशियोज बाकी है. डू पॉइंट भी बाद में कराऊंगा. ठीक है. सो what is turnover ratio, activity ratio? It tells you the efficiency of each activity. ठीक है. For example, profitability ratio जो हमने करे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है लिंकेज ऑफ और रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट. ये प्रॉफिट अलग अलग तरह का हो सकता है. ये जीपी हो सकता है, ऑपरेटिव प्रॉफिट हो सकता है, या नेट प्रॉफिट हो सकता है. दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. सेल्स और प्रॉफिट किस तरीके से बिहेव करते हैं वो बताता है. ठीक है. टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स. ठीक है. तो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का ये रेशियो सेल्स and a particular activity. So it tells you the relationship between sales and activity. Example. So first है fixed asset turnover ratio.
Now the fixed asset turnover ratio. Okay, so okay, this is sales upon fixed asset. Okay. Now, if I move further, ये basic आप देख लो. So it tells you how efficiently companies producing sales with its machine and equipments. Okay, what does this mean? Situation A, situation B. So let's say situation A में if sales upon fixed asset turnover ratio 3 है, तो 3 means 3 by 1 लिख सकता हूँ. Let's assume situation B में ये 0.5 है. तो 0.5 means 0.5 upon 1 लिख सकता हूँ. Hello. Yes. Okay. So now what does this mean? This means for generating, मैं लिख देता हूँ. This means for generating situation A की बात कर रहा हूँ. Generating sales of 3 rupees, I need investment of rupees 1 in my fixed asset. This is situation A. Or this also means that it also, ठीक है, this also means if you invest 1 rupee in fixed asset, it generates sales of rupees 3. Or it tells you how efficient you means management, are using fixed asset to generate sales. Example, सिचुएशन बी में देखो, दोनों ही हम सिचुएशन में ए और बी में 1-1 रुपया लगा हुआ फिक्स एसेट में. In situation A, the management is effectively utilizing the 1 rupee fixed asset and generating a sales of 3 rupees. But for situation B, the management is only able to generate 0.5 rupee sales from the same 1 rupee investment in fixed asset. So we'll pause here. कोई doubt है तो पूछिए. You understood this concept? Again, रेशियो में जो 3 चीजें मैं आपको कराऊंगा, 1 मिनट दीपक. So one is basic definition and ज्ञान.
जो आपको स्लाइड में मिलेगा, जो आप आज तक करते आए। सेकेंड इज फॉरेंसिक एंड थर्ड इज सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, हाँ दीपक। What are the contents of this fixed asset? Yeah. What are the contents of fixed asset? कौन सा आंसर, तो theoretical के practical? पहले theoretical सुन लो, because नहीं, पहले theoretical बताता हूँ, ये आगे theoretical आएगा, then you will start contradicting। ठीक है, फिर मैं practical बताता हूँ। theoretical आंसर ये है जो आपको आगे स्लाइड में मिलने वाला, और 90% आपको बुक्स में मिलेगा। इनफैक्ट 100% इंडियन ऑथर्स बुक्स में यही मिलता है आपको। ठीक है, ये फिक्स एसेट का मतलब ये लोग लेते हैं ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस divided by 2. So which means let's assume अगर हम 2020 के लिए कर रहे हैं, 2019 लेते हैं, 2019 के लिए कर रहे हैं, तो 2019 का जो ओपनिंग बैलेंस है दीपक, वो कहाँ से मिलेगा मुझे? 2018 के बैलेंस शीट से मिलेगा। 2018 की क्लोजिंग बैलेंस शीट विच मींस 2019 का ओपनिंग बैलेंस, और Yes. ये वाला जो है ये तो 2019 में मिल ही जाएगा। ये लोग क्या करते, मतलब जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है वो ये है, all fixed asset. When you say all fixed asset, it excludes current asset from total asset. ये theoretical version है before I show you what we use or what practically should be using for industry forensic analysis. इसमें कुछ पूछना है तो बताओ before I show you the next one. No, I'm saying that if do we have to restate this that in some of the cases that current asset has been transformed into fixed asset and all. Vice versa also. So that's what the real version that we use. What we use, fixed asset which is used or purchased for production, for sales, यानी ऐसे फिक्स एसेट जिसके लिए, जिसको सेल्स के लिए नहीं खरीदा गया है, हम उसको, मैं उसको नहीं डलवाता, मैं उसको भी एक्सक्लूड करवा देता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से कल का एग्जांपल, मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट में डील करता हूँ, आई एम अ शर्ट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मेरे पास पैसा था, मैंने एक लैंड खरीद ली, कंपनी ने एक लैंड खरीद ली, बट कंपनी ने वो लैंड एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खरीदी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी इज नॉट गोइंग टू यूज दैट लैंड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। ठीक है, नॉट टिपिकली बैलेंस शीट में लैंड दिखेगी, हो सकता है उससे रेंटल आ रहा हो, लीज आ रहा हो, ये भी हो सकता है, but when I will do the analysis of this, I would exclude this land in spite of the fact it is a fixed asset. Because this land is not for the purpose of generating sales, then why should I include that into analysis of testing how efficient I'm utilizing my resources for the sales? Because this resource is not meant for the sales, not meant for generating sales. So this brings a complication कि जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, then from each of the fixed asset, first हम breakup of the fixed asset. Most of the companies fixed asset का breakup नहीं होता है बैलेंस शीट में, fixed asset लिखा होता है, ठीक है, या gross block net block लिखा होता है, ठीक है, उसका breakup नहीं होता है जनरली। then either you get it from the notes to account और schedule से आपको breakup मिलता है। ठीक है, उसमें then you need to identify कौन कौन से asset है जो genuinely sales को support करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने FD करा रखी है 5-5 साल की, अब कंपनी से पूछा आपने एफडी क्यों करा है, कंपनी बोलते हैं हमारे पास कैश रिच है, वी डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इनटू सम अदर रिस्की एसेट क्लासेस, सो वी हैव पुट इनटू द एफडीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, are you going to use this for your sales? The answer is no, because we are already operating at 70% or 60% capacity. यानी अगर मुझे सेल्स बढ़ानी भी हुई तो मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी खासी 30-40% अभी भी बची हुई है for me to increase the sales. Hence, I'm not going to liquidate these FDs for increasing the sales. Hence, in spite of the fact these might be fixed assets, I will exclude this from this analysis. This is the practical part of it.
दीपक क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? No, it's okay. Anybody else? Any other question on this? So before I move to point 2, ये मैंने point 1 समझाया ये वाला. कुछ पूछना है किसको? हेलो सर. और सर इंटेंजिबल ऐसे जैसे गुडविल के थ्रू जो जनरेट हो रहा है तो है ना, मैं गुडविल को हम लेते हैं यहाँ पे. इट्स नॉट अबाउट टैंजिबल इंटैंजिबल. अगर कोई भी मेरा फिक्स एसेट है, ठीक है, और वो सेल्स को लिंक करता है या सेल्स में पुश करता है या सेल्स में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं उसको लूंगा. गुडविल दोनों तरीके से इम्पैक्ट करता है. गुडविल नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है. गुडविल पेटेंट कॉपीराइट दिस टाइप. क्लियर सर. ठीक है. For some of the UK based clients also. Yeah, Deepak, go ahead, sorry. Can you please brief out a little bit more about this goodwill part? है आगे. Okay. ये तो फजलूर ने पूछा इसलिए मैंने थोड़ा टच बेस किया. आगे है गुडविल लाइन पे. Okay. मैं आपको क्या बता रहा था कि first very high end transactions and very high end modeling and valuation cases, particularly clients based out of UK and European markets. Okay. What we've done, we have also included certain human resource asset into fixed asset. Well, think logically. You don't try and be bookish. For example, let's assume मैं एक कंपनी चला रहा हूँ. मेरी कंपनी में दीपक एक टेरिटरी सेल्स हेड है और एक फजलूर लेट्स अज्यूम दूसरी टेरिटरी का सेल्स हेड. बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल उस टेरिटरी में मेरी सेल्स बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप. वहां के बड़े बड़े क्लाइंट्स वो लोग जानते हैं, स्टफ लाइक दिस. नाउ व्हिच मींस, ask yourself, does this mean that because Deepak and Fazlur are on our organization or on our payroll, are this helping us in generating sales? The answer comes out to be yes. If I as a management ask myself, the answer let's come out to be yes. If the answer comes out to be yes, for certain transactions, we've included these as well into fixed assets for generating sales, because ये मेरे लिए important है. क्योंकि अगर मैं इन बंदों को हटा देता हूं, ठीक है, तो ये बंदे हटाने के बाद मेरा सेल्स पे इम्पैक्ट आता है. केस 2, इफ दीज रिसोर्सेज आर वेरी ऑर्डिनरी रिसोर्सेज व्हिच उनको हटा के किसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, then I do not include those pieces. But if these are critical resources, okay, then we don't do this for most of the Indian clients, because I don't think Indian markets work like this. But some of the UK and European segments work like this. Okay, another question. Any question on this before I explain to quantify कैसे करते हैं हम लोग? Any question on this from a concept perspective? This might be new. Okay, I take that as no. So what we do, जो फजलूर को दीपक को हमने बोनसेस दिए हैं, ठीक है, so उसमें एक कंपोनेंट होता है रिटेंशन बोनस. So I don't know. This is what not something which is very unique to India. That's why I said कि इंडिया में इतना यूज अभी हमने स्टार्ट नहीं किया. यूके यूरोपियन मार्केट्स में जो बोनसेस होते हैं, स्पेशली ऑन द सेल साइड, उस बोनस के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है परफॉर्मेंस बोनस, एक होता है रिटेंशन बोनस. परफॉर्मेंस बोनस, फॉर एग्जांपल, ये बोनस आपको दिया जा रहा है फॉर द ईयर 2019 में दिया गया.
2019 में आपका सेल्स टारगेट था ₹100 या $100, आपने अचीव किया $110. ठीक है, so this is your performance. You achieved your target or little more than the target. तो उसका जो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा वो आता है इस कंपोनेंट में, which is performance bonus. This is simple. This is very pretty much in what happens here. ठीक है ना? But let's assume अब इस एम्प्लॉई को, let's assume एम्प्लॉई X है, इस एम्प्लॉय को मैं अगले 3 साल रिटेन करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाए. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, वी गेट सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट इन फॉर्म ऑफ दिस इज माय फ्यूचर केपेक्स दैट इज बीइंग गिवन टू द एम्प्लॉय. अब ये एक तरीके से फिक्स एसेट है, क्योंकि अगर मैंने 3 साल का दे दिया आपको तो अगले 3 साल तक आप मेरे साथ रहोगे. This is what I use here into fixed asset. ठीक है, don't try and complicate things for you, don't try and bring this in an interview, but मैं आपको एक से बता के रख रहा हूँ. ठीक है, कि we go to that extent and do this piece of as well. ठीक है. I have one question in this. If in case, for example, you have engaged 3 years the person, you are liable to pay. If you are putting the person down, then also you are liable to pay. Down means you're saying the person is putting down the papers? Yes. So वो reverse होता है. Then again we have to restate that or what? Or it's depend no, करता है, it's depend करता है okay. क्या होता है. It's all based on the contract. Average out, what you have. Average out, हाँ, average out हो जाता है जनरली, क्योंकि कुछ लोग पेपर डालेंगे, कुछ लोग नहीं डालेंगे. तो लेट्स अज्यूम अगर मैंने 10 लाख रुपए के बोनसेस दिए हैं रिटेंशन सेगमेंट में, मैं पूरे 10 लाख को काउंट नहीं करता, मैं एवरेज ट्रेंड देखता हूँ. ओके, उस सेगमेंट ऑफ द पीपल का टर्न अराउंड रेट क्या है. ठीक है, लेट्स 10 में से 3 लोग जनरली 3 साल में डाल देते हैं पेपर एंड दे पे बैक द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं 10 लाख का 30% नॉक ऑफ करके 70% ही लेके आऊंगा, 7 लाख को फिक्स एसेट में लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आने वाले 3 साल में 3 लोग आउट ऑफ 10 लोग तो छूट ही नहीं वाले और वो पैसा वापस आने ही वाला, तो वो मेरा फिक्स एसेट नहीं रह गया. Then we have to restate as in current asset for this or what? No, we don't need to reinstate because मैं उसको फिक्स एसेट में कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, तो रीइंस्टेट की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले से एक्सक्लूड कर दिया उसको. What I'm trying to explain to you, I do not wait for an employee to put down the paper. What I do, I look at the past trend. If the past trend tells me, we call these people as fast track talent pool. Okay, so if my fast track talent pool में let's assume churning ratio 30% है, यानी on an average उस pool से 30% लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं जितने बोनसेस दिए हैं उसका 70% को ही इस कैलकुलेशन में लेकर आऊंगा, पहले से एक्सक्लूड करके रखूंगा. दीपक, Yes. clear? Yes. Anybody else? Sir, in this retention bonus, we will give. मतलब हम लोग 3 साल का इकट्ठा इसको बोनस दे देते हैं कि सर कैसे जाता है, मतलब देते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजेशन, एचआर, उसके लॉ, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करके बनाया जाता है. तो उसमें अकॉर्डिंग टू कंपनी, so not according to company, according to law, according to taxation structure. हर कंट्री में हर लॉ का अलग अलग कॉन्सेप्ट है. ओके, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो एचआर जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं बोनसेस के, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. उसमें वी आर नॉट टू मच ऑफ इंटरेस्टेड, नॉर वी हैव एनी से ऑन दैट. ओके सर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि थियोरेटिकली आप जब बुक्स देखेंगे, स्लाइड देखेंगे या गूगल भी कर लीजिए, कहीं पे भी आपको फिक्स एसेट में बोनसेस इंक्लूड करते हुए नहीं दिखेंगे. बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू लॉजिक, और यही मैं कल भी बोल रहा था
कि ये एक इवॉल्विंग डायनामिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रेशियो एनालिसिस, फॉरेंसिक एनालिसिस। इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि अगर मेरे वो क्लियर नहीं है तो मैं ये एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया रेशियो क्या है, रेशियो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड माय फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा केपेक्स जो मैंने क्रिएट किया है जो मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा में देगा। यू आर विद मी मनमीत? यहाँ पे फिक्स एसेट यही होता है ना? यस सर, यस 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 सर। तो अब वो मैंने 4 लाख रुपए एक मशीन पे लगाए और वो मशीन अगले 5 साल चलने वाली है, तो मेरा फिक्स एसेट है, मेक सेंस। अब ऐसे ही मैंने वही 4 लाख किसी एम्प्लॉई पे लगाए और वो अगले 5 साल तक मेरे साथ रहने वाला, तो वो भी तो मेरा फिक्स एसेट, और स्पेशली वो सेल्स का बंदा और सेल्स में क्रिटिकल रिसोर्स है, तो वो मेरा फिक्स एसेट नहीं होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल वो इंक्लूड कर लेंगे लोग उसमें। करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। थ्योरेटिकली ये सब लिमिटेशन या ये सब फाइन ट्यूनिंग नहीं है, बट माय सजेशन टू यू, ये इंटरव्यू मत बोल देना आप लोग, क्योंकि आपने बोल दिया सामने वाले को नहीं पता, बिकॉज ये इतना ज्यादा एग्रेसिव यूसेज अभी नहीं आई है, स्पेशली एशियन मार्केट्स में, देन बैक टू द इंडियन मार्केट्स। सो देन अदर पर्सन माइट नॉट थिंक कि आपको गलत बोलता है। बट इफ समबडी ओके स्टार्ट्स सर। आस्किंग यू ऑन दिस साइड, then you should be aware to say कि हाँ, this is also making sense because of ABCDs. श्योर सर, अंडरस्टूड। Let me give you another example. For one of the again on no name basis, so one of the sports franchisee team, we were doing some analysis, and this ratio is one of those ratios that we were doing for them. Now, technically, if you see, ये वही concept है। मैं IPL का एग्जाम्पल लेता हूँ, because sitting in Indian market, so आपको शायद IPL concept सारा समझ आएगा, rather than taking a soccer example. So for example, जैसे अगर IPL में let's assume कोई भी टीम है, let's assume चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स का अगर मुझे रेशियो निकालना हो, so I don't know whether you understand the IPL business or not. नीचे फिक्स एसेट में क्या रखोगे guys? Because they don't have any assets like machines and stuff like this. The contract they are having for 3 years or so with each player. Which is exactly a retention bonus, correct? Yes, exactly. अगर उस फ्रेंचाइजी ओनर ने, let's assume धोनी, which is under Chennai Super Kings, धोनी को hypothetically let's assume that, let's assume 1 crore rupees दिए हैं for next 3 years for him to play under Chennai Super Kings, तो मेरा रिटेंशन बोनस की फॉर्म में तो है। Is that not fixed asset? दीपक? Yes. That's the same concept मैंने भी आपको समझाया in a corporate जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक 2022 लोगों का एक स्क्वाड बनाया है, ठीक है, तो उसमें मैंने जिन जिन लोगों को खरीदा है फॉर नेक्स्ट 3 years, वो मेरे एसेट्स है, राइट? तो उनका टोटल पे आउट मेरे डिनोमिनेटर में आता है। दैट्स व्हाट वी डिड। उसके अलावा एनीबडी हु देखो, IPL एक है एंटरटेनमेंट साइड, व्हिच इज अगेन, ठीक है, आई लीव इट टू यू, एवरीबॉडी विल हैव अ सेपरेट। आई थिंक from our perspective, from financial analyst perspective, IPL का एंटरटेनमेंट पार्ट के पीछे उसका बिजनेस पार्ट है, जो मेरे हिसाब से आपको समझना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो should try and spend some time to read about this, to get into more about this. This is one of those good business model जो इंडिया में लास्ट 6-7 years से लॉन्च किया गया है, which is already there for ages into some of the other international markets, especially into sports segment. तो कोई लोग अगर उसको फॉलो करते from entertainment perspective, try and if you have an interest to understand the business side of it as well. हाँ जी, डिनोमिनेटर में और क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? प्लेयर्स का बिडिंग अमाउंट हो गया, और नहीं,
कोच फीस एंड ऑल। वो सब आ गया ना प्लेयर्स में। चलिए ठीक है, आई थिंक आप लोग को आईपीएल का बिजनेस साइड इतना आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दैट। चलो छोड़ो, इग्नोर करो इसको, लेट्स फोकस ऑन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स। हाँ, तो इसमें कुछ पूछते बिफोर वी गो टू द फॉरेंसिक साइड ऑफ इट। नहीं, चलिए नाउ। हेलो यस मैम। सर, एक्चुअली ये पूछना था मुझे कि ये फिक्स्ड एसेट्स जो है वो बुक्स में भी मतलब ये वैल्यू कंसीडर, मतलब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही बोनस वगैरह वैल्यू कंसीडर करके लिखा जाता है या सिर्फ रेशियोज के लिए हम अलग से फिक्स्ड एसेट्स कंसीडर करते हैं? नहीं, बैलेंस शीट में वो फिक्स एसेट में नहीं आती सब चीज। बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी आपको सब चीजें। ओके। Theoretically, from an academic perspective and from accounting perspective, this is not a fixed asset. हम रेशियोज के लिए कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में ये सब इंक्लूड करते हैं प्रैक्टिकली। आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो, depending upon the nature of the transaction, depending upon the ability of the analyst to do this. ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को भी आगे भी मिलेगी कि फॉर्मूला में x अपॉन y लिखा होगा, मैं आपको x प्लस समथिंग एंड डिनोमिनेटर में y प्लस समथिंग या माइनस समथिंग करा रहा हूँ। सो अगर आप उसके लिए लॉजिकली कन्विंस है तो उसको लो और आगे बढ़ो, अगर लॉजिकली कन्विंस नहीं हो तो मुझसे पूछो। बट अगर आप मुझे बोलो बुक में दिखाओ सर ये कहाँ लिखा हुआ है, वैसा हो सकता है कि वो कहीं नहीं लिखा हुआ मिले। इसलिए दीपक ने फिक्स एसेट वाला पूछा, मैंने उसको यही पूछा पहले कि कौन सा आंसर दूं, एकेडमिक और प्रैक्टिकल, देन आई गिव यू बोथ आंसर्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। इसलिए मैंने आपको आईपीएल का भी एग्जांपल दिया कि आईपीएल में उसके फिक्स एसेट क्या होते हैं, वो प्लेयर्स ही तो फिक्स एसेट होते हैं, तो उनको जो आप पैसा दे रहे हो अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं, वो रिटेंशन बोनस ही तो है एक तरीके से। और सेम लॉजिक पे अगर आप ये तो देखोगे, आई वाज एक्सपेक्टिंग समबडी टू आस्क दिस बट किसी ने पूछा ही नहीं। सो किसी ने पूछा नहीं सर ये वाला पार्ट क्यों नहीं ऐड किया आपने फिक्स एसेट में, परफॉर्मेंस बोनस, क्योंकि ये करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट नहीं है। इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ उसी साल मिलने वाला है। वो तो एवरी ईयर चेंज होता है ना सर, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। वो तो रिटेंशन भी चेंज होता है। रिटेंशन तो आप फिक्स टाइम के लिए दे रहे हो ना? दे रहे हो मतलब हर साल चेंज होता है ना ये अमाउंट, मतलब हर साल But मिलता है या हर साल performance, चेंज होता है? but performance can be or cannot come. रिटेंशन भी सेम लॉजिक है, कैन और कैन नॉट बिकम। No, सो but लॉजिक if the person is there, then for rest of the 3 years he will be there, and you are paying the fixed bonus what you have, and there is no variable part in that. आई एम सेइंग कि अगर एक एम्प्लॉय ने अपना ये टारगेट अचीव किया, Okay. मान जाओ कोई रिटेंशन बोनस नहीं है अभी के लिए, और मैंने उसको परफॉर्मेंस बोनस 0 दिया, क्या ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकती है? द आंसर इज यस। Yes, they can do that. एंड दे कैन गिव अ ग्लोबल ज्ञान की इकोनॉमी खराब थी, कोविड था, ये था, वो था, इसलिए इस साल कुछ नहीं मिलेगा। करेक्ट? आप सब Yes, लोगों ने ऐसा फेस किया होगा या करने वाले होंगे अभी, कर दिसंबर आने चुके हैं। वाला है। कर चुके हैं ना, तो हाँ ठीक है, कि फील द पेन। बट नाउ दिस गाय माइट बी अपसेट, यार इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी हाथ में कुछ नहीं मिला, एंड नेक्स्ट डे ही माइट लीव, भागो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। हो सकता है हाँ या ना?
Yes. ठीक है, especially the talent will move off. ठीक है, they will not stay if you don't take care of those people. ठीक है, so which means अगर आप ध्यान से देखो कि अगर अब मैं उसको यहाँ पे लेट्स अज्यूम x पैसे दे देता हूँ परफॉर्मेंस बोनस में, तो ये बंदा अगले साल रुकेगा मेरे साथ शायद, कि यार ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिवॉर्ड तो किया, इन दी होप कि नेक्स्ट ईयर भी रिवॉर्ड करेगी, चाहे रिटेंशन बोनस में दूं ही नहीं। तो अगर आप, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँ, लॉजिकली सम पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बोनस भी इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को रिटेंशन में हेल्प करता है, बट हम उसको फिर भी नहीं लेते। मतलब again there's no bookish law, there's no law and written black and white, but I'm trying to explain the logic to this is कि ये जो है this is more like treated more like a current asset form, कि 2000 इसका जो बेनिफिट है ये आपको जो दिया जा रहा है, ये जो आपने अचीव किया उसके लिए दिया जा रहा है, तो ये खत्म हो गया 2019 में, इसकी स्टोरी 2019 में खत्म हो जाएगी। जो रिटेंशन है ये अगले कुछ सालों के लिए आपको दिया जाने वाला है, एंड दिस विल मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर फ्रॉम अ फिक्स्ड एसेट पर्सपेक्टिव। this is the logic that is being applied. Now, again, this is not foolproof. It has its limitation. जो limitation है वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस बोनस होते हैं इसमें भी सम पार्ट ऑफ रिटेंशन इंक्लूडेड होता है फ्रॉम इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो अगले साल वो रिटेन नहीं कर पाऊंगा, और दूंगा तो शायद वो रिटेन कर, but somewhere you draw a line. That's why this line will be drawn with this part of the limitation. What accounting standard states for this? There's no accounting standards for this. Okay. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपके ये जो बोनसेस होते हैं ये फिक्स एसेट में नहीं आते। अब ये रिटेंशन रेशियो कह रहा हूँ, ये रिटेंशन बोनस could be in form of cash or could be in form of ESOP. I'm sorry, but I'm not trying to complicate things for you. I'm just trying to give you perspective कि आपको समझ आए कि how advanced is this, कि ये तो ठीक है, ये तो कैश तो आपका थिंक समझ आ गया। तो कुछ एम्प्लॉइज को स्पेशली द सीनियर मैनेजमेंट से ESOP भी दिए जाते हैं अंडर दिस कैटेगरी, हेंस इसको भी फिक्स एसेट में जोड़ दिया जाता है। So it could be cash, it could be another form. Doesn't make a difference as long as you're giving with the intent of you want to retain that employee for next few years. So that gets added to the fixed asset. Okay. Yeah, Maruti does it. Yeah. A lot of organizations do this, especially Many into this companies does it. Yeah, especially into this financial. अब ध्यान सुनो ना सर, एक investment bank है, private equity firms है, big consultancy, financial consultancies, industry companies हैं, ये सब MNCs की एसेट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, उनका टैलेंट पूल ही एसेट है उनके पास, और क्या है? ऑफिस वो खरीदते नहीं, ठीक है, कोई मशीनरी खरीदते नहीं, सिर्फ लैपटॉप होते हैं, करेक्ट, कोई भी एसेट नहीं होता, सिर्फ उनके पास दो चीजें होती हैं, एक लैपटॉप होता है और उनके पास एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। दैट्स द ओनली एसेट दैट दे प्ले। करेक्ट, they're not into manufacturing business, उनके सेटअप्स होंगे, प्लांट्स होंगे, मशीनरी होंगे, ठीक है। The entire done is in concept, or entire business has been done through these two assets. One is my IT, which is IT infrastructure, or could be an IT software concept, and second is the human resource talent. So these are my two fixed assets through which I play and make this money. तब उसको रिटेन करने के लिए चाहे मैं ESOP दूं, चाहे मैं कैश बोनस दूं, चाहे मैं सैलरी में डिफरेंट पर्क्स ऐड करवाऊं, कुछ भी कराऊं, आप उसको डिफरेंट नेम्स दे सकते हो। नेम्स इसलिए दिए जाते हैं टैक्स से प्ले करने के लिए,
टैक्स से अलग अलग ट्रीटमेंट लेने के लिए, बट एट द बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन्स कि आप उसको पैसा इसलिए दे रहे हो कि भाई तो अगले साल मेरे साथ ही रहिए, कहीं और जाइए मत. Now, so let's come to this part of it now. इसका फॉरेंसिक देखते हैं. So इस रेशियो पे फोकस करो. Sales upon fixed asset. Let's assume 2018 and 2019. यहाँ पे कंपनी का 3/1 था, यहाँ पे कंपनी का 0.5/1 हो गया. Is this good or bad for the company? Bad, sir. Bad. ठीक है, अब इसका फॉरेंसिक स्टार्ट करते हैं. अभी दो रीजन की वजह से हो सकता है, दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रीजन की वजह से हो सकता है. फर्स्ट, first your sales goes down but fixed asset remains constant. Second is your sales remains constant but your investment in fixed asset goes up. देख लीजिए ध्यान से, हाँ या ना. Yes. Now, which is favorable and which is unfavorable? 1 and 2. Which is favorable, which is unfavorable? Out of First is favorable, sir. first is favorable, मतलब कंपनी के लिए अच्छा है फर्स्ट, यानी सेल्स नीचे चली जाए, फिक्स एसेट सेम रहे, अच्छा है. क्यों अच्छा है? No, sorry. कृतिका, क्यों अच्छा है? I meant कि more realistic scenario है, but sales constant और fixed asset ऊपर जाए. नहीं, मैं रियलिस्टिक नहीं पूछ रहा, मैं रियलिस्टिक तो दोनों ही होते हैं इंडस्ट्री में. I'm saying which is more favorable to the company and which is unfavorable. Number 2. Sorry, number 2 is what? Favorable, unfavorable? Favorable. Scenario 2 is favorable. अच्छा, ठीक है. Both are unfavorable. No. Means for if you are increasing the fixed asset and all that, then you may
come up with a new means growth of the company and all that. But cost is Can you increasing say and that? revenue is constant. करेक्ट, तो अगर आप फिक्स एसेट में लगा रहे हैं पैसा और सेल्स भी नहीं बढ़ रही है लॉन्ग रन में, दैट्स आल्सो अ फ्लॉप प्लान ना. No, it's in a short run. हाँ, शॉर्ट रन ठीक है, शॉर्ट रन नहीं, I'm talking about लॉन्ग रन. The span of 2 to 3, 5 years we're looking at. अगर फिक्स एसेट में आपने पैसा बढ़ा दिया और No, वो because it सेल्स. all depends on the company. For example, if you are going for a refinery business, then they are investing in a project, and those projects will not come up in a year or two. Correct. So उनका एक gestation period होगा. Let's assume the gestation period for that project, let's assume 5 years, which means after 5 years the sales should go up. So what we're looking at, Yes. we're looking at depending on nature of the business, वो जो gestation period होता है, जिसको कुछ इंडस्ट्री में cooling off भी बोलते हैं, कि वो पीरियड कंसिडर करने के बाद भी अगर मेरा सेल्स फ्लैट है या उतनी रेट पे ऊपर नहीं गया जितनी रेट पे मैंने फिक्स एसेट को लगाया, तो अनफेवरेबल है ना. ये दोनों लॉन्ग Yes. रन पर्सपेक्टिव में बात लेके चल रहे हैं. So hence, what I'm trying to explain to you, ये दोनों from a long run perspective is unfavorable to the company. दोनों प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए. ये दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत है. ऐसा नहीं कि एक अच्छा पेन है, this is good for your body, let it be. For example, when I hit gym and when I start working on a particular part of the body, it starts giving me pain for initial part of some phase of that workout. Okay, so that's a good pain because your muscles are getting into that shape and form which will generate something. So that's called as good pain. I'm saying ये दोनों bad pain है कंपनी के लिए. It needs to be treated the long run perspective. क्योंकि आगे आप देखोगे कुछ रेशियोज में कुछ आपको गुड पेन भी दिखेंगे, मतलब जो हम बोलेंगे कि हाँ ये तो अच्छी बात है, इस पेन को रहने दो, दिस पेन, लेट द कंपनी bear this pain because this will give some positive results in the future. But both of these, 1 and 2, are the bad pain, needs to be treated. Is everybody with me till this? Yes, sir. Now, so पहले 1 को डिस्कस करते हैं. हाँ जी. So if your sales is going down and your fixed asset remains constant, a COVID could be a scenario like this. A company who prior to COVID would have manufacturing setups, but because of the COVID, the entire sales has gone down, but still my asset continues to be in the same levels. This could be those scenarios. Yes. Now what Yes, we'll sir. do, फर्स्ट सिचुएशन का फिर हम पीयर एनालिसिस करेंगे. पीयर एनालिसिस मैंने कल आपको बताया था, विच मींस ये ट्रेंड प्लॉट के जाएगा बाकी कॉम्पिटिटर्स पे. अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स भी फॉर दिस सेम टाइम पीरियड ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विच मींस सेल्स इज गोइंग डाउन, देन दिस इज अ मैक्रो इशू, जैसे कोविड टाइप से. लेट्स अज्यूम बाकी पेयर्स का सेल्स नीचे नहीं आया है, उनका सेल्स बड़ी उसी ट्रेंड में चल रहा है, बट हमारा सेल्स नीचे आ गया. देन यू नीड टू फाइंड आउट ये क्यों नीचे आया. क्या चेंज किया आपने वो नेक्स्ट 2 से 3 साल में. एनी चेंज इन एडवर्टीजमेंट, एनी चेंज इन फीचर्स, टेक्नोलॉजी, पैकिंग, delivery, what is the change? So these are the questions that we ask to the management. ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेल्स हेड को कि भाई बाकी लोगों का तो सेल्स नीचे नहीं आया, आपका नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, क्या ऐसा हुआ है इस पीरियड में which has resulted in a change in the sales. Any questions on this?
Now, part 2. Part 2, there are two sub scenarios of part 2. Part A and part B. Part A is the strategic investment. When you say strategic investment means कि company ने, management ने, board ने, production department head ने, sales head ने, so some senior management has sat together and has decided, okay, let's make this investments. ठीक है, जैसे अभी refinery example दीपक दे रहा है, so उसमें you've taken a call कि yes, you want to do a much more investment, but उसका जो result है sales में वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 10, जो भी उसका gestation period है उसका business का, उसके बाद दिखेगा. So which means till that 3 years, 4 years, your sales will continue to show flat because इस asset का increase in asset का impact अभी इसमें नहीं दिखना शुरू है, but your assets in the balance sheet side has gone up because वो investment आपने करनी शुरू कर दी है. So this is a good pain अगर इस कैटेगरी में फॉल कर जाता है तो. Any questions on this? नहीं समझ में आया स्ट्रेटेजिक कौन सा. आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, आपके भी एक मशीन है, आपने कहा चलो दूसरी मशीन लगाते हैं, वो मशीन को लगाने में 3 से 4 साल का टाइम लगेगा, तो आपने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, तो 3 से 4 साल में आपका मशीन है, प्रोडक्शन सेटअप रेडी होगा, तो उस 3 से 4 साल में कोई प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सेल्स हो पाएगा? नहीं सर. बट इन्वेस्टमेंट तो होनी शुरू हो गई है. हम्म. इसका मतलब क्या है कि सेल्स ऊपर नहीं गया, फिक्स एसेट ऊपर चला जाएगा. हाँ. तो वही है, इसको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं. फजलूर, क्लियर है ये? यस सर. यस सर. Anybody else, any other question on this? Okay. Now say this part B, is where you have not made any strategic investments like this. ठीक है. Still your fixed assets has gone up. ठीक है. उस केस में हम लोग क्या करते हैं? We start comparing fixed asset breakup of this year vis-a-vis last year और जो भी आपका बेंचमार्क है. जो फिक्स एसेट का ब्रेकअप है वो कंपैरिजन स्टार्ट होता है फिर, और इस कंपैरिजन से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ फिक्स एसेट है जो ऊपर गया है, एंड इज दैट
समथिंग रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई एफडी कर दी, कोई लैंड खरीद लिया, तो हो सकता है बैलेंस शीट में अकाउंटिंग टर्म्स में आपकी वो एफडी और लैंड की वजह से वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट हैज गॉन अप, बट द कंपनी हैज नॉट परचेज दैट विद द इंटेंट ऑफ सेल्स, करेक्ट? तो मुझे वो अपने रेशियो में एक्सक्लूड करना चाहिए टू गेट द करेक्ट पिक्चर। केस 2, लेट्स से कंपनी ने एक मशीन खरीदी है और वो मशीन खरीदने के बाद भी सेल्स ऊपर नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है, विच मीन्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उस मशीन को अच्छे से यूटिलाइज अभी नहीं करवा पा रहा। गाइस क्लियर है यहाँ तक? इसमें एक और चीज है, लेट्स अज्यूम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस नई मशीन को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है, और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री ऊपर जाता जा रहा है बट मेरा सेल्स फ्लैट है, तो अब सेल्स की प्रॉब्लम है ये, क्योंकि प्रोडक्शन हेड ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने नई मशीनरी को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग तो कंटिन्यू कर रही है अच्छी, जिसकी वजह से वो इन्वेंट्री बना बना के दे रहा है, प्रोडक्ट बना बना के दे रहा है, बट सेल्स उस सेल्स को इंक्रीज कर नहीं पा रही है, इसलिए ये इन्वेंट्री क्रिएट होनी शुरू हो गई है। So now I will get hold of the sales department, not the production department, because the problem is sales, not the production. I will pause here. Good doubt is the push. This inventory is in terms of quantity or value increasing? Quantity. Okay. Because we are assuming कि price कोई change नहीं हुआ है कंपनी का, अगर price change नहीं हुआ तो value तो आएगी नहीं, it will be only quantity. If let's assume there has been significant change in the price, then of course you will make the adjustment to get the reflection of the quantity. हेलो सर। हाँ दीपक, सॉरी, हाँ मतलब सर ये जो ट्रेडिंग कॉम्स है, जो ट्रेडिंग कॉम्स है, तो ये फर्स्ट वाले केस में करेंगे या सेकेंड वाले केस में? ट्रेडिंग कॉम्स, ये पीयर ग्रुप एनालिसिस। sorry, could you repeat your question? ट्रेडिंग कॉम्स, ट्रेडिंग कॉम्परेबल्स, पीयर, जो आपने बताया पीयर ग्रुप एनालिसिस, तो फर्स्ट Trading वाले केस के comparables. सर। What is हाँ, trading comparables? जो आपने बताया डिफरेंट कंपनीज के साथ कंपेयर करना, पीयर ग्रुप Peer जो आपने analysis. बताया, हाँ पीयर Peer एनालिसिस। analysis. हाँ, तो वो फर्स्ट केस के साथ करेंगे या सेकेंड केस के साथ, जब सेल्स डिक्रीज कर जाएगा या सेल्स कांस्टेंट रहेगा? which is first, which is second for you यहाँ पे? दो केस आपने बताया ना, एक सेल्स डिक्रीज करता है और फिक्स्ड एसेट ये रहता है, फिर दूसरा केस मैं पेयर एनालिसिस वहां पे करूंगा जहां पे फिक्स एसेट सेम रहता है और सेल्स डिक्रीज कर जाता है, एंड अगर वो सेल्स डिक्रीज सिर्फ मेरा नहीं हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री में सब अदर प्लेयर्स का भी हो रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, then it is not a problem, it is a problem, but the problem is not under your control, it's an external environment. क्लियर सर। Any other question on fixed asset turnover ratio?
So basically, this is more beneficial for the management point of view rather than from investor point of view, right? I think all ratios, Parul, because I don't think, um, except the return ratio and couple of valuation ratios, के बाकी सब ratios is primarily used for the management, because जहाँ पे भी बात efficiency check करने की बात, let's suppose you were invested in Reliance, you're not interested in checking the effectiveness or efficiency of the business, correct? Of sales में efficiency generate हो रही है कि नहीं हो रही है, inefficiency तो नहीं है, उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, करेक्ट? आपका इंटरेस्ट प्राइमरली होगा रिटर्न साइड पे, एज अ शेयर होल्डर, एज इन्वेस्टर, ठीक है? So most of those ratios, other than return and profitability ratios, would be used for management. Yes. So now, हाँ, कुछ है फिक्स ऐसे टर्नओवर रेशियो में before we move further?
चलिए, ये देखिए जो आपको एकेडमिक कैलकुलेशन मिलेगी, जो मैं बता रहा था, ऐसे मिलेगी। डिनोमिनेटर में ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो अगर आप कहीं भी एकेडमिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलते हैं कैलकुलेट करके दिखाओ, और there is no analysis and no high level ratio piece of involved, it's only for the calculation purpose, and somebody want to tally your number with his or her number, so then be cautious that don't try and use this advanced concept and just go with this formula for the denominator, because वो फिर आपका इसी से टेस्ट करेगा आंसर। ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग बैलेंस आपको प्रीवियस बैलेंस शीट से मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस आपको करंट बैलेंस शीट से मिलेगा। या सुभाष? Do we see a year anything else? Subhash, you need to repeat. I can't hear you very clearly. Hello. Yeah. Miss, I'm saying that what is the meaning of 2? 2 is a year and anything else. Sorry? You are saying, what is the meaning of 2 divided by 2? You're saying opening minus closing divided by 2. Average कर रहे हैं ना हम लोग. Divide by 2 is average. When we're taking two numbers in the numerator, I will take average of it. अगर आपको इसका भी लॉजिक बता देता हूँ, देखिए न्यूमरेटर में सेल्स है, नीचे फिक्स्ड एसेट है, न्यूमरेटर एन, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, जो सेल्स होता है, सुभाष आप म्यूट पे जाओ, प्लीज गो म्यूट अनलेस यू आर आस्किंग एनीथिंग। सो सेल्स आपका पीएनएल से आता है, फिक्स्ड एसेट आपका बैलेंस शीट से आता है। पीएनएल फ्लो कॉन्सेप्ट है, बैलेंस शीट आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो यू कांट हैव सेम रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑन टू डिफरेंट पैरामीटर्स की। न्यूमरेटर फ्लो है, डिनोमिनेटर स्टॉक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा के ये जो स्टॉक है ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला भी लगाया जाता है, इसीलिए ही ये फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ये स्टॉक फ्लो पता है आप लोगों को? नो। अरे फिर आप लोग बता भी नहीं, मेरे को नहीं पता है, सर नहीं पता है, मैं समझाता हूँ। स्टॉक फ्लो क्या होता है? जैसे पीएनएल में सेल्स होता है, पीएनएल क्या बनता है? जो पीएनएल होता है, पीएनएल की हेडिंग में क्या लिखा होता है? फॉर द ईयर लिखा होता है ना, फॉर द ईयर 2019 ऐसे लिखा होता है, पीरियड ऑफ टाइम। बट जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में लिखा होता है एज ऑन 31 मार्च 19, ऐसे लिखा होता है। व्हिच मींस जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो भी वैल्यूज होती हैं वो फॉर द पीरियड नहीं होती, इट्स नॉट फॉर द पीरियड। वैल्यू इज एज ऑन दैट डेट। एग्जाम्पल देता हूं, आप एक बैंक में आप अपने बैंक में जाते हो, अपने बैंक में आप उसको बोलते हो मुझे 2019 का मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट दे दो, अकाउंट स्टेटमेंट दे दो। आप 2019 एक पीरियड का अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हो अपना, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, कि एक पूरे पीरियड का मांगते हो। जब आप उसको बोलते हो, लेट्स अज्यूम आप बैंक में गए आप बैंक में लेट्स अज्यूम 30 दिसंबर 19 को गए, और उस दिन आपने बोला कैशियर को या बैंकर को कि व्हाट इज माय बैलेंस, अब ये जो बैलेंस है ये फॉर द पीरियड होगा कि एज ऑन दैट डेट होगा? ये एज ऑन दैट डेट होगा ना, इसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट।
ये होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, नीचे वाला होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes. Is this clear, Parul and everyone? Stock and flow concept. Yes, sir. One Yes, sir. Yes. So एक सेकंड दीपक। So अब एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर एक न्यूमरेटर फ्लो कॉन्सेप्ट है और डिनोमिनेटर स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब समझो क्या हुआ। मान लो ये पूरा साल है, जनवरी एंड दिसंबर, ठीक है। जो सेल्स फिगर है, सेल्स फिगर तो इस पूरे पीरियड की है, रेंज की है, करेक्ट। बट इस पूरे पीरियड की सेल्स को हम कंपेयर करते हैं फिक्स एसेट एज ऑन लास्ट डेट। ये तो गलत है ना। पूरे साल की सेल्स को हम एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट, एट द एंड ऑफ द ईयर के फिक्स एसेट से कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं और पारुल एक ही क्लास में है, मैं एंड दीपक इज आवर ट्रेनर, तो दीपक मेरा और पारुल का परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर कर रहा है। मेरे तो पूरे सेमेस्टर के परफॉर्मेंस दिख रहा है और पारुल की सिर्फ सेमेस्टर के एंड में जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसकी परफॉर्मेंस देख रहा है। ये दोनों कंपैरिजन गलत है ना। या तो मेरा भी एंड ऑन होना चाहिए या पारुल का भी पूरे सेमेस्टर का परफॉर्मेंस होना चाहिए। गाइस, यू विद मी? Yes, sir. नाउ लेट्स अज्यूम पारुल ने पूरे सेमेस्टर में कोई एग्जाम दिया ही नहीं, सिर्फ उसने सेमेस्टर के स्टार्टिंग में एग्जाम दिया और एंड में एग्जाम दिया। लेट्स अज्यूम बीच की जो एग्जाम है, शी वाज नॉट अवेलेबल, शी वाज ट्रैवलिंग और व्हाटएवर रीजन, शी हैज नॉट गिवन दोस एग्जाम। So then Deepak as a trainer has two options. या तो ये गलती करे कि ठीक है, निशांत का पूरे सेमेस्टर का परफॉर्मेंस एवरेज मार्क्स कंपेयरिंग विद पारुल के मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर वन एग्जाम, और ही कैन ट्राई एंड रिड्यूस दिस मिस्टेक और लिमिटेशन। रिड्यूस बोल रहा हूँ, एलिमिनेट नहीं बोल रहा। कि सेमेस्टर के बिगिनिंग में भी एक एग्जाम था, सेमेस्टर के एंड में भी एग्जाम है, इन दोनों को लेके एवरेज कर दे। उस एवरेज से सम रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रेंज मिल जाएगा, बट नॉट 100%। समझ आया क्यों डिनोमिनेटर में ये एवरेजिंग करी हुई है। और आप हम हर रेशियो में देखोगे जहां पे भी ये डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट मतलब ये प्रॉब्लम है कि न्यूमरेटर में एक फ्लो है, डिनोमिनेटर में स्टॉक है, वहां पे ये डिस्कनेक्ट किया, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए एवरेजिंग करी जाएगी। या दीपक, गो अहेड। द फिक्स एसेट का जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होता है वो क्या फिक्स एसेट में से माइनस करना पड़ेगा व्हेन वी आर मैं नेट ब्लॉक पुटिंग दिस? लूंगा, मैं नेट ब्लॉक Sorry? लूंगा, नेट ब्लॉक लूंगा। नेट इज Okay. आफ्टर डेप्रिसिएशन। Okay. You with me, or should I also explain the logic, और वो पता है, क्लियर है? No, that's okay because the fixed asset is no more what the book value the last year it is. Exactly. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन ली थी, लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए की, ठीक है, और उसकी लाइफ लेट्स अज्यूम 10 इयर्स है, ठीक है, और मैं अभी 9th ईयर में खड़ा। तो 9th ईयर में उस मशीनरी की जो वैल्यू है 1 लाख रह गई होगी, बट उसकी एबिलिटी टू जनरेट सेल्स भी तो 1 लाख के आसपास ही रह गई होगी ना, क्योंकि वो वियर एंड टियर होकर मशीन सब खराब हो गई होगी। तो अगर मैंने उसको 10 लाख की कंपैरिजन कर दिया सेल से, तो ये तो बहुत खराब हो जाएगा एनालिसिस। आपने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, ठीक है,
और वो कार जिस स्पीड पे या जिस एफिशिएंसी पे फर्स्ट ईयर में चलती थी, उसी कार की एफिशिएंसी को मैं कार के 15th ईयर ऑफ द लाइफ में कंपेयर करूंगा, तो दैट वुड बी इनकरेक्ट, करेक्ट? So I will take a net Yes. clock after depreciation. Anything else, guys? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोगों ने being very upfront, मैं आपको यहाँ पे स्टॉक एंड फ्लो लिखा, और अगर मैं नहीं पूछता तो शायद कोई नहीं बोलता, ठीक है? आई थिंक एक्चुअली विजिबिलिटी नहीं थी, फॉर एग्जांपल, टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर मी. विजिबिलिटी इन द सेंस, Visibility in the sense that to perceive this aspect that balance sheet and there is static figures and this P&L is a मैं dynamic. आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो, हर चीज का अपने आप से पूछो, क्या मुझे इसका वाई पता है? वाई, WHY, बोल्ड में अपने आप से पूछो, पता है? नहीं पता तो वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, मुझे बता दो सर मुझे नहीं पता, बाकी आप देख लो। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे। सर मैं देखो अपना काम इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं आपको पुश कर रहा हूँ, मुझसे पूछो, बट आई थिंक दैट्स द रीजन यू वांटेड मी टू टेक दिस सेशन, करेक्ट? अगर, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होगा ना, मैं हर चीज पे आपको नहीं पूछूंगा पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है। शायद मैं 50 टॉपिक में से 10 में पूछ लूं, 20 में पूछ लूं, बट आई वांट यू टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली, ठीक है? सबको बोल रहा हूँ, सिर्फ दीपक को पॉइंट नहीं कर रहा। एंड अंडरस्टैंड दीपक इज ऑल्सो, और दीपक इज सेइंग कि हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं, किसी ने ऐसा बताया नहीं, तो हमें साइड ही नहीं पता थी कि क्या लॉजिक होता है। हमेशा किसी ने रटवाया कि हाँ एवरेज कर दो, हम वो रटते ही आ रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू हिंट, बट agree, but this is the time when you start asking everything, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, क्यों नहीं है ये, सॉरी ये क्यों है, उसका रीजन मैं आपको फिर बताऊंगा। रीजन आई एम सेइंग दिस बिकॉज शायद मैं हर चीज पर रुक रुक के ना पूछ पाऊँ कि ये पता है कि नहीं पता, तो एंड दैट्स व्हाई आई वांट एवरी इंडिविजुअल टू टेक केयर ऑफ हिज लर्निंग और हर लर्निंग, कि अगर पारुल को यार ये पीस मुझे नहीं, लॉजिक नहीं पता इसका क्या है, हाँ ये मुझे पता है, सब नहीं पता, शायद मेरे पास में किसी ने ये नहीं बताया ये क्यों होता है, पूछ लो। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो रिपीट हो जाएगा फॉर अदर्स, बट पारुल का तो बेनिफिट हो जाएगा, उसको नहीं पता है। सो माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई नीड थ्रू आउट द जर्नी, जहां जब तक आप मेरे साथ हो, कि प्लीज स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि ये मुझे समझ में तो आ गया, बट इसका रीजन मुझे पता है क्या, वाई मुझे पता है कि क्यों कर रहे हैं। प्लीज आपको देन जो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हेलो लेवल पे जाने की बात करें, वो अचीव हो पाएगा। हाँ फजलू सर, मुझे इफिडेसर का सॉल्यूशन नहीं पता, सॉल्यूशन या फिर रिकमेंडेशन क्या किया इसका जाए? सॉल्यूशन जो आपने फोरेंसिक एनालिसिस बता दिया, इसका सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन क्या होगा? अरे डिस्कस किया ना हमने अभी, वो पेज भी गायब हो गया। हमने डिस्कस नहीं किया कि अगर सेल्स फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया कि अगर मैंने आपको 2 रीजंस बताए थे, आपका सेल्स है, ये फिक्स एसेट है, ठीक है। एक आपको बताया था कि जिसमें आपका सेल्स फ्लैट है, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज, हाँ फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है, अगर ये स्ट्रैटेजिक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का सेल्स 3 साल 4 साल के बाद आएगा। तो ये रिकमेंडेशन है कि कुछ मत करो, बिकॉज कंपनी ने स्ट्रैटेजिकली कॉल लिया है। जो रिफाइंड एग्जांपल आई थिंक दीपक ने शायद दिया था कि वहां पे 5-10 साल लगता है, तो अगर कंपनी ने 5-10 साल का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और सेल्स तो 5-10 साल के बाद ऊपर जाएगा, तो अभी तो कुछ नहीं करना है। मैनेजमेंट को पता है, मैनेजमेंट विल टेल द शेयर होल्डर्स कि बॉस ये एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट विल शो रिजल्ट्स आफ्टर 5 years or 10 years। सेकेंड केस में, सेकंड केस में मैंने आपको बताया कि अगर सेल्स नीचे जा रहा है और फिक्स एसेट ऊपर जा रहा है, फिर हमने बताया, मैंने आपको बताया कि इसको पीयर से कंपैरिजन करो। अगर इंडस्ट्री में सबका सेल्स नीचे जा रहा है और आपका भी नीचे जा रहा है, तो यानी वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। जैसे कोविड का एग्जांपल दिया, तो किया तो है हमने, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना है इंडस्ट्री का ओवरकम हो। फिर इसका जो दूसरा पार्ट मैंने आपको दिया, जो आपको उसका समझाया था, क्लोजिंग स्टॉक का,
कि आपने कोई एसेट को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, बट आपकी सेल्स ऊपर नहीं जा रही है, बट आपकी इन्वेंट्री ऊपर जा रही है, यानी प्रोडक्शन हेड ने तो उस मशीन को यूज कर, नई मशीन को यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, बट सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल नहीं कर पा रहा है। तो देन अगेन यू विल गेट होल्ड ऑफ द सेल्स पर्सन एंड आस्क ये क्यों चेंजेस करें आप, ये क्यों सेल्स ऊपर नहीं जा रहे हैं। सर शायद आपने पार्ट मिस कर दिया, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। आई थिंक वी डिस्कस दैट पार्ट। ठीक है सर, क्लियर सर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि वो सेल्स अगर नीचे जा रहा है तो हम सेल्स वाले को पूछेंगे क्या चेंज किया है, कुछ चेंज किया है क्या इनमें से, एडवर्टीजमेंट, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग, डिलीवरी, कुछ तो चेंज किया जिसकी वजह से नीचे जा रहा है ये। और फिर उसी से रिकमेंडेशन वो डिपेंड करेगा, उसने कहता है एडवर्टीजमेंट चेंज किया है, क्यों किया है, then probably things will start coming out. Just an example देता हूँ आपको. I don't know whether you've seen this. Fair and Lovely has changed the branding and the advertisement and the name in view of what has happened in last 6-7 months, a little more than that, in especially in the US markets for this entire issue of black and white concept. So have you seen that Fair and Lovely has made certain changes? Yeah. क्या हो गया नया नाम उसका? ग्लो एंड ब्यूटी पता नहीं क्या। ठीक है। So now हो सकता है वो उनके सेल्स को इम्पैक्ट करना शुरू कर जाए. The numbers are yet to be seen. I'm not seeing the numbers yet, but when I speak to somebody into that management, so yes, it starts showing impact, especially into markets like Asian markets. Asian market पर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है. आप कितना भी theoretically ये सब चीजों को बात कर लो, but real life still remains same कि इंडिया में जो उसकी जो मैक्सिमम परचेज होती थी, कस्टमर्स जो खरीदते थे, वो मोर फ्रॉम अ फेयरनेस पर्सपेक्टिव उस प्रोडक्ट को एसोसिएट करते थे. करेक्ट. नाउ व्हेन यू रिमूव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, still is a big question mark whether it will work on in the markets like India or not. Okay. So these are some of the case studies. अगर आप लोग पढ़ते हो, ट्रैक कर रहे हो, you are interested, you should read about these pieces as well. Newspapers में काफी आया था इसके ऊपर भी. That reminds me, last class में. In 1992, when India started this FDI, then suddenly the beauty was coming in India. Prior to that, it was not. In that sense, means. Yeah. तो ये जो चेंज है, ये कोई इंडिया फोर्स चेंज होना है. ये तो डर गए हैं कि यूएस में ये सब हुआ, so if that gets spread to the other parts of the world or some of the other developed or strong countries जहाँ पे लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है, what will happen to the product? Yeah. They might get into legal problems and their product might get social boycott and stuff like this. उसके प्रोएक्टिवनेस में ये सब किया गया है. And they themselves know कि some countries में this might not work, but they have no choice now. ठीक है. So I understand India में भी वो कुछ करने वाले हैं, so just wait for next I think quarter or so. इंडिया में इसको फाइन ट्यून करके एक और इस पे कुछ लेयर लगाई जाएगी. That's what I understand. But let's see, wait and watch वो क्या लेके आते हैं. ठीक है. Anything else in the fixed asset turnover before we close this? कुछ पूछना है? Please, again same question. Why is very important. Please, ऐसा कुछ जो मैंने लिखा हो, बोला हो, स्लाइड में आपने देखा हो, which not clear from a why perspective, please let me know. इसका स्लाइड भी देख लो, थ्योरी वाला. Yeah, just go through this. So ये सेम चीज आई थिंक पारुलिया कृतिका ने शायद पूछी थी, कौन देखता है.
So investors creator use this formula to understand how well company is utilizing. To me, this is not reality. If I'm an investor, I will not be interested in too much in give a fixed asset पे कितना sales generated किया. I would be less interested in that. I would be more interested in मेरा ROE बताओ, मेरा share price के movement दिखाओ, मुझे PE shares, PE ratio दिखाओ. I would be more interested on those sides. So this seems to be more theoretical, but ठीक है. This is something that we've discussed. Point number 3. कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आपको पता लगता है कि आप एसेट में जो यूज कर रहे हैं उसका सेल्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है स्टफ लाइक दिस. If you see point 2, I don't know whether you're convinced with the point 2. What's your view on point 2? Anybody, any reaction on this? Are you convinced with point 2? Does it help you to calculate your return on your investment? No, it will misguide the investor. मैंने 500 रुपए का शेयर खरीदा, 500 रुपए का शेयर खरीदा, वो 500 रुपए फिक्स एसेट में जाके सेल जनरेट करेगा, ऐसा थोड़ा होता है. Now this is what I'm trying to explain. This is what makes a distinction between who knows the industry and who knows the concept through book. ठीक है, ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है और ऐसे कॉपी पेस्ट किया गया इसलिए. ठीक है, but if somebody shows this to you in an interview or a discussion and you're able to make those distinctions, you don't know this is not seems to be right. You put a logic up front. That's what distincts you and puts you into the category called talent and other candidate. चलिए, ये ठीक है, ये सब ये मैंने डिस्कस कर लिया. अगर आपको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट हो तो कर लेना, बट आई सेड I'm not too much of. So this is a part of the fixed asset turnover ratio. कुछ पूछना है तो बताइए. No? ठीक है. Have we discussed about newspapers in one of the previous sessions? Have we touched upon the newspapers, the importance of reading newspapers? उस पे कुछ बात किया था मैंने. Yes. Yes. ET. है. You हाँ, discussed वो on. ठीक है, ET and depending on क्या. So and I'm assuming कि जो लोगों ने start नहीं किया है, वो start कर दिया and you made those modifications, whatever we discussed and agreed. Anybody facing challenges, need any help, more than happy to address that. कुछ है which you can believe worth for discussing with me. सब लोगों ने start कर दिया न्यूज़पेपर पढ़ना. ठीक है, silence means Yes, नहीं sir. किया. But Yes. economics times is bit difficult to go through. Pura. Yes, it is. It is. So One question I have, I mean, on this, what the fight going on between Amazon and Future Group? Bull. So they have a legal agreement already done with Amazon that cannot be sold this Future Group assets to them, RIL. Yeah. Means, अब वो legality. So if I will only go because that is not mentioned in that. They are fighting this and that every day. It is coming. So if I go only with newspapers, okay, so different articles. They will not give the insight of that. Yeah. So, but without bringing anything which I know outside the newspaper, is कि short में story यही है कि it seems to be legal battle. Amazon बोल रहा है कि आप ये इसको नहीं बेच सकते थे because आपने मेरे साथ legal agreement किया. कि दूसरी पार्टी बोल रही है legal agreement में इसका ये मतलब नहीं था. Short में यही कहानी है. It's basically an interpretation. ये अभी तक ऐसा मीडिया में चल रहा है. इसकी रियलिटी मान के चलो भी नहीं पता है. Because this means media picture will impact either of these shareholders of Reliance as well as Amazon and all. मुझे लगता है नहीं. ठीक है, because both these companies are big enough. उनके लिए ये इस तरीके एक बार किस साइड ये जाता है, I think that is what
will impact not the tussle which is going here and there, which will impact too much right at this stage. ठीक है, but yes, it will create some impact because अगर आप देखो दोनों के future strategies, Reliance is very aggressive into Indian retail, into Indian retail stroke e-commerce segment, correct? तो एक Reliance अब उसमें enter कर गया है, ठीक है. अब Jio के बाद उसका focus इस पे होने वाला है. So that's Reliance. Amazon आपको पता है, Amazon तो anyways is an international giant into online retail or e-commerce segment, correct? And now India is one of the top target countries for Amazon in Asia Pacific, ठीक है? So now दोनों के लिए ये एक next probably 5 to 10 year का एक future prospect है on which both of them are positive. So hence बनी बनाई आपको खिचड़ी मिल रही है ना. फ्यूचर ग्रुप क्या बना एक पूरा सेटअप बनाया है. I don't know, for those others who don't know, फ्यूचर ग्रुप इज बिग बाजार वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका. यस पूरा बनाया सेटअप है ना, रेडी अवेलेबल. तो अगर रिलायंस इसको ले जाता है तो उसको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा. Amazon अगर ले जाता है तो उसको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. जो दोनों अचीव करने, रिलायंस और Amazon जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शायद 2-3 साल फास्ट अचीव कर लेंगे क्योंकि ये बना बनाया सेटअप उनके हाथ में आ जाएगा. तो दैट्स व्हाई द फाइट इज गोइंग कि वो क्या अब वो फाइट लीगल कितनी किसके फेवर में. आई एम ट्राइंग नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन द लीगल एग्रीमेंट एंड उसको लीगल एग्रीमेंट देख के जो लीगल इंटरप्रिटेशन है जब तक वो आई थिंक क्लियर आउट नहीं आती है तब तक आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि कौन सही बोल रहा है, रिलायंस सही बोल रहा है, Amazon सही बोल रहा है. But I think for others, I go back to the general agenda कि I think Kritika mentioned कि हाँ difficult है. The answer is yes, difficult है. Especially अगर आप early stage पे हो, मतलब आपने भी recently start किया तो आपको थोड़ा ज़्यादा challenges आएंगे. But you need to bear those challenges and continue to have patience for at least 2.5 months. उसके बाद धीरे धीरे आप सेटल डाउन होना शुरू होगे. बट अगर आप उसके बीच में पेशेंस तोड़ देते हो, वो फोकस छोड़ देते हो, then I think it will go off very easily. ठीक है. So for others जिन्होंने respond नहीं किया था, assume I know the silence means कि आपने नहीं किया, but officially I take that the other way. I will say कि आपने कुछ नहीं बोला है तो I am assuming कि आप सब under control है. ठीक है. ये second question I have on this. Okay, please. So reading of newspapers, guys, I will not try and track this. ठीक है. ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, सेल्फ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है. If anything that you struggle, you need to highlight to me, not the vice versa. I will not go and chase you. हाँ दीपक. The Cyrus Mistry and Tata Group, the pleading of those shares. Why Tata is not allowing them, this Canadian company, to plead this Cyrus Mistry stake है उसके पास, because it is not much. इनके पास टाटा का स्टेक है, करेक्ट? हाँ, yes. ठीक है. अब वो टाटा का स्टेक किसी को बेचेगा तो टाटा को प्रॉब्लम होगी ना. But legally he can do that. तो टाटा भी तो लीगली और इनडायरेक्टली हेल्प चैलेंज क्रिएट कर सकता है ना उसके रोड ब्लॉक्स. भी लीगल राइट है. दोनों लीगली खेल रहे हैं. Exactly. तो ऐसा तो नहीं है कि टाटा ने इलीगली कुछ कर दिया, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू खेल रहा है. अगर थोड़ा पीछे पड़ोगे ना, not थोड़ा सा, I think if we go down back to let's say 2.5, little close to 2.5 to 3 years के बीच में, तो आपको इसकी रूट कॉज समझ में आएगी. ये थोड़ा सा ईगो इशू क्रिएट हुआ है between two Mr. When Cyrus Mistry was put it down. ये वहां से चलता हुआ आ रहा है. ठीक है. तो अभी आप जो देख रहे हो
ये तो बहुत एंड इसकी टेल है इस पूरे इवेंट की जो हो रही है। Oh, that ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा 2-3 साल गूगल करोगे तो पुराना जब जाके देखोगे साइरस मिस्त्री को हटाया गया, क्यों हटाया गया, क्या हुआ, वहां से पढ़ोगे ना तो ये बहुत पिक्चर आपको क्लियर दिखेगी ये क्यों हो रहा है सब कुछ। okay. ठीक है, anything else guys? So मैं next session में next class में करेंगे, the point of doing this ये खत्म नहीं होगा, I want to keep this break on this other side. I think next anything- week नेक्स्ट वीक होगी फिर क्लास? weekdays आप में तो बोलोगे नहीं probably करेंगे। होगा। आप बोलोगे नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको honestly बताता हूँ, मैं आपको honestly वीकेंड बताता पे हूँ। दिवाली है ना? अगर नहीं करनी नहीं करवाएंगे, करनी है करवा दूंगा। करनी है सैटरडे को मत करवाना सर। देखो मैं सिंपल सा आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग देख लो, आपको तो वैसे भी ऑनलाइन ही है, घर से ही है, विल टेक दैट कॉल। अभी पहले आपकी जो वीकडे में वेडनेसडे थर्सडे वाला वो तो चलने दो, लेट्स टेक दैट असेसमेंट बाय थर्सडे। आप लोग अपने प्रेफरेंस बता दो, देन आई कैन चेक विद आर्मी। यू गाइस ओके विद सैटरडे? इज एवरीबॉडी ओके विद सैटरडे? दीपावली तो शाम को है ना, मॉर्निंग में। I am okay. I'm okay. संडे 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 आल्सो ओके ओके। I'm In fact, okay with Sunday also. Sunday. अच्छा ठीक है ओके। ठीक है, Hello, sir. नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, कोई डाउट तो पूछ लेना। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि नामनी विल put the session on or not, but what I understood the majority of preferences कि Saturday Sunday is okay, given आपका बैच वैसे मॉर्निंग में होता है। So if that works well with whatever Damni is scheduling, तो हाँ, नहीं तो छुट्टी होगा, जो भी वो शेड्यूल करेगी मैं आपके प्रेफरेंस पास ऑन कर दूँ। हाँ, that reminds me, Deepak, did Damni get in touch with you? Yes. After that, somebody from MRTech has called me up yesterday. ठीक है, So I've given him the feedback now. So they will come up. ठीक है। So anyway, when you think you अटक गया और आपको नहीं आ रहा है, just let me know, then again I will push certain bells in the system. हेलो Yes, सर। yes, sure. हाँ फजलुर, सर केस स्टडी बहुत समझ में नहीं आता रहता है। जैसे केस स्टडी का सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए? जैसे 20-20 पेज का केस स्टडी सब रहता है, तो उतना सारा पढ़ कौन सा करके दे। पेज का है? कौन सा केस स्टडी? बहुत सारा केस स्टडी सर। जैसे आपका प्रॉब्लम है कि वो 20 पेज पढ़ने में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है? हाँ, कि उसमें कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या कॉन्टेक्ट पढ़ा जाए, कॉन्टेक्स्ट। नहीं, आपको 20 पेज पढ़ने में प्रॉब्लम है फजलुर, इज दैट द प्रॉब्लम? यस सर। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैं 20 पेज में से पहला पेज पढ़ लूं, आखिरी पेज पढ़ लूं, बीच का कोई पैरा पढ़ लूं, इफ दैट व्हाट यू ट्राइंग टू आस्क, द आंसर इज आई एम नॉट बिलीवर ऑफ दैट स्ट्रेटजी। अगर केस स्टडी है उनमें 20 पेज है तो लगाना पड़ेगा आपको वो जो भी टाइम आपको लगेगा पढ़ने के लिए। और सर इसका ये क्या कहते हैं, केस स्टडीज में दे फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन किस तरीके से देते हैं, ये समझ में ही नहीं आता है बहुत सारा। अरे तो आपको केस स्टडी नहीं समझ आ रही हो, केस स्टडी समझ में क्या नहीं, आप केस स्टडी पढ़ ही नहीं पा रहे हो 20 पेज का, तो आपको यही नहीं पता उसमें इशू क्या है। जब तक इशू नहीं समझ आ रहा, सोल्यूशन क्या समझ आएगा? फर्स्ट स्टेप तो ठीक से करो। जब तक वो 20 पेज की केस स्टडी को आप पढ़ नहीं पाते हो, तब तक सोल्यूशन पे कहाँ तक पहुंचोगे? यस सर। पहले केस स्टडी पढ़ो, वो 20 पेज हो, 500 पेज हो या 5 पेज हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट केस यू नीड टू रीड दैट केस स्टडी। अब उसमें टाइम लगेगा तो लगेगा। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है, थैंक्स। विल कनेक्ट आपका, आई थिंक वेडनेसडे जो भी नेक्स्ट क्लास होगा तो विल कनेक्ट। चलिए बाय, ठीक है, Thank you. तो वेडनेसडे को कितने बजे क्लास होगा? सेम टाइम है जो टाइम आप लोगों ने किया है एग्री, वो दामनी आपको कम्युनिकेट कर देगी। सो सेम टाइम, आई डोंट थिंक एनी चेंज, बट वेट फॉर अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम देम। थैंक यू। थैंक्स, बाय।